को सादर जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरी आवाज आ रही है अनिल जी? हाँ, आ रही है। ये सब आ रही है। आ रही है आवाज? ठीक है, ठीक। हाँ बिल्कुल आ रही है, साफ है। हाँ, मैं पूर्वी जी से निवेदन करूंगा कि वो मेरी स्लाइड डिस्प्ले करने के लिए तैयार रहें। पूर्वी जी, आज का जो मेरा लेक्चर है, आई हैव सेलेक्टेड ए टॉपिक, द कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनाचार्यज टू बोटेनिकल साइंस। आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म अहिंसा परक धर्म है। जैन धर्म एक अध्यात्म परक धर्म है और जैन धर्म में जितने क्षेत्र लिए गए हैं वो वास्तव में हम अगर कई जन्म लें तब भी उनका पूरा विस्तृत अध्ययन नहीं कर सकते। लेकिन कई लोगों को यह जानकारी नहीं होती और नहीं है कि हमारे जैनाचार्यों ने वनस्पति शास्त्र में भी काफी कुछ अध्ययन किया और पेड़ पौधों के बारे में भी काफी कुछ लिखा। तो चूंकि मैं वनस्पति विज्ञान का विद्यार्थी हूं, therefore I prefer to select this topic, contribution of Jainacharyas to botanical science. Next please. आप जानते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, कि हमारे तीर्थंकरों ने उनकी जो दिव्य देशना खिरी, उस दिव्य देशना में बहुत सारी बातें कही और उनकी दिव्य देशना को, चूंकि हम भगवान महावीर के शासन काल में चल रहे हैं, तो जो सोर्स ऑफ नॉलेज था, जो ज्ञान का जो केंद्र था, वो भगवान महावीर के की दिव्य देशना से था। एंड दोज प्रीचिंग्स दे वर अडॉप्टेड बाय देयर गणधर्स, and then Shrut Keblij came and they adopted the preachings of Gandhar. And after Shrut Keblij, there had been several acharyas, several ascetics who wrote several scriptures on several disciplines of Jainism, and botany or botanical science is one of them. Next please. So this botanical science is very important in Jainism, and it has certain principles. Why it was incorporated, why it was told by our acharyas, and why it has so much of importance in Jainism. So here there are certain points. First is, the first principle of Jainism is non-violence or ahimsa. So to observe non-violence or ahimsa, the plants were given importance. Then we practice, we follow principle of eatables and non-eatables. So to emphasize on edibles, that is bhaksh, and non-edibles, that is abhaksh. That was the another point. Then to provide knowledge on plants and their importance. Several kinds of plants, they have been classified into various groups, several kinds of forest and several things. And then the Ayurvedic science was elaborately described by Jainacharyas, that I will tell you later. Then conservation of nature, conservation of ecosystem. You know that all Jain principles, they center around conservation of each and everything. So that was one of the objectives of describing plants. Then for meditation, for practicing religion, good health is required. And when we would have eatables, the plants which can be consumed, they are good for health, then only we can maintain our health. So that is also one of the points. And then aesthetic, from aesthetic point of view also, the plants have been described by Jainacharyas. Next please. We know that Jain Agam has been classified into, please next. Jain Agam has been, Jain literature, Jain scriptures, they have been classified into two main categories. Number one is Agam category, Agam literature, and number two non-Agam literature. Agam literature वो है जो भगवान ने जो उपदेश दिए, उन उपदेशों को गणधरों ने और श्रुत केवलियों ने ग्रहण किया और उनको
अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में उनको लिखा गया। दूसरा जो नॉन आगम लिटरेचर कैटेगरी है, ये जो लिटरेचर लिखा गया अर्धमागधी प्राकृत इत्यादि भाषाओं में, उन पर जो कमेंट्रीज लिखी गई, आज हमारे सामने बहुत से आचार्यों की कमेंट्री हैं और उन कमेंट्रियों में को विभिन्न भाषाओं में लिखा गया। संस्कृत वाज द मेन लैंग्वेज, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ओल्ड मराठी, राजस्थानी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिल, and at present many workers they are writing their commentary in English language also. Next please. Then we know that entire Jainism, entire Jain darshan has been divided into 4 अनुयोगाज। 4 अनुयोगों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला अनुयोग है प्रथमान योग, and we know that all 63 Shalaka Purush, they have been described, their lifespan, their life cycle, their working has been mentioned in this Prathman Yoga. And in Prathman Yoga, we find several Puran like Adi Puran, Padam Puran, Harivansh Puran, Mahabir Puran, several Puran, और इसके बाद में चरित्र, बहुत से चरित्र लिखे गए। तो 63 शलाका पुरुषों में हम पाते हैं 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, इनकी कथाएं हैं। इनकी कथाओं को जब आचार्यों ने लिखा तो वहां भी उन्होंने प्लांट साइंस को अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया, बहुत सारे वनों को डिस्क्राइब किया, बहुत सारे औषधीय गुणों को डिस्क्राइब किया और अभक्ष और भक्ष के बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। तो अगर हम प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ें तो हमको ये बोटेनिकल साइंस वहां पर दिखाई देती है। नेक्स्ट प्लीज। देन कम्स द नेक्स्ट अनुयोग, एंड दिस अनुयोग इज करुणान योग और गणित अनुयोग और मैथमेटिक्स। एंड दिस अनुयोग इट एक्सपाउंडेड द टेक्स्ट विच हैड मैथमेटिकल व्यू पॉइंट। इस अनुयोग में हमको मैथमेटिक्स मिलता है, एस्ट्रोनॉमी मिलती है, एस्ट्रोलॉजी मिलती है और दूसरा लिटरेचर मिलता है। ये वास्तव में विलक्षण अनुयोग है। जब हम इस अनुयोग के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे आचार्य कितने बड़े ज्ञान के भंडार थे कि उन्होंने इतने डिफिकल्ट, इतने जटिल विषयों को लिया और बड़ी सरलता से पेश किया। इस अनुयोग में 2 मुख्य ग्रंथ हैं, सूर्य प्रज्ञप्ति एंड चंद्र प्रज्ञप्ति। ये अनुपलब्ध है लेकिन इनका जिक्र होता है, ये अवेलेबल नहीं है। तत्वार्थ सूत्र भी इसी में आता है, रिटन बाय आचार्य उमा स्वामी। देन जय धवला टीका बाय वीरसेन, जिनसेन, गोमट सार बाय आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। इन्होंने करुणान योग के ये ग्रंथ लिखे। उसके बाद में आता है चरणान योग। आई टोल्ड यू अर्लियर दैट जैनिज्म इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कंडक्ट, ऑन कैरेक्टर। यहाँ कंडक्ट और कैरेक्टर को जितना एम्फेसाइज किया गया है अन्य जगह कहीं नहीं किया गया है। और ऐसा नहीं है कि केवल गृहस्थों के लिए ही बताया हो, उन्हीं के लिए गाइडलाइंस हो, अपितु साधुओं के लिए भी कंडक्ट बताया गया है। सो दिस अनुयोग इट कंसिस्ट ऑफ सम टेक्स्ट लाइक मूलाचार, इट वाज रिटन बाय आचार्य वट्टेकर, त्रिभुवनाचार अगेन बाय आचार्य वट्टेकर, and very important is Ratnakand Shravkachar, which is for we people। श्रावकों के लिए बताया है कि हमको अपने जीवन किस प्रकार जीना है, किस प्रकार के चरित्र का पालन करना है। और इस प्रकार इन ग्रंथों में, इन श्रावकाचारों में उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स का वर्णन किया है, कौन सा खाने योग्य है, कौन सा खाने योग्य नहीं है और कहां पर हिंसा होती है। नेक्स्ट प्लीज। एंड द लास्ट अनुयोग and very important is Dravyan Yoga, and it is very much concerned with philosophical approach, and several scriptures were written by our eminent acharyas, and Kund Acharya was one of them. And important scriptures were, they are there, Niyam Sar, Panchastikaya, Pravachan Sar, Samay Sar, and several commentaries were written on these scriptures. And Acharya Samant Bhadra wrote commentary, Pujyapad, Akalank Dev, Vidyanand
ji. So several commentaries are there on Dravyan Yoga, and in this Yoga also, in these scriptures also, we find that plants are mentioned at several places. Next, please. Padam Purana, I would give you a few examples only where the plants have been mentioned. Padam Purana was written by Acharya Ravi Sen, और उन्होंने छठवें पर्व में उन्होंने लिखा है कि कुछ प्लांट्स, कुछ वनस्पतियां ऐसी होती थी जो रात में भी चमकती थी, और वानर द्वीप में ऐसी वनस्पतियां होती थी। और उन्होंने खजूर, आंवला, नीम, कैथा, चंदन, कदम्ब, अचार, अनार, सुपारी इत्यादि जो पौधे होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, उनका वर्णन भी पद्म पुराण में किया है। नवे पर्व में उन्होंने साल वृक्ष के बारे में बताया है कि साल वृक्ष कैलाश पर्वत पर होता है। अगर आज की बात कहूं तो साल वृक्ष कैलाश पर्वत पर नहीं पाए जाते, तो हमको उस दृष्टिकोण से भी देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये पौधे जो कभी हिमालय में कैलाश में पर्वत पर पाए जाते थे, उनका वहां पर लोप हुआ, और आज हमारे यहाँ ये दक्षिण भारत में साल के वन पाए जाते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में भी साल के वन पाए जाते हैं। 21वें पर्व में भगवान मुनि सिद्धनाथ ने चंपक ट्री के नीचे अपना आत्मज्ञान प्राप्त किया था, मोक्ष प्राप्त हुआ था। और इसी पद्म पुराण में लिखा है कि जब रामचंद्र जी वनवास हुआ था और उन्होंने नर्मदा नदी को पार किया था, तो कनेर वन में गए थे। और कनेर के वृक्षों के बारे में, पेड़ों के बारे में, आज भी कनेर हमारे आसपास होते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे दंडक वन के बारे में भी इसमें बताया गया है। नेक्स्ट प्लीज। हरिवंश पुराण जो श्री कृष्ण एवं भगवान नेमिनाथ की जीवन गाथा को लिए हुए है, और इसको आचार्य जिनसेन जी ने लिखा। इसके 11वें सर्ग में उन्होंने बताया है, उसमें भरत जी की भी बात आई है कि जब भरत जी हिम्मत कूट पर गए तो उनका स्वागत बहुत सारे औषधीय हर्ब से किया गया, औषधीय पौधों से किया गया, और हरिचंदन से नामक वनस्पति से किया गया। जम्बू द्वीप के बारे में हरिवंश पुराण में लिखा है कि ये जम्बू द्वीप में जम्बू नाम के वृक्ष होते हैं, इसको हम जामुन भी कहते हैं आज के समय में। तालमली ट्रीज भी होते हैं। और जम्बू द्वीप के आसपास 14वें सर्ग में उन्होंने बकुल, कुरबत, तिलक, पुन्नाग, सिंह, केसर, इस प्रकार अनेक प्रकार की वनस्पतियों का वर्णन किया है। 21वें सर्ग में उन्होंने औषधीय, बड़ी विचित्र औषधियों का वर्णन किया है। इन 21st सर्गा मेडिसिनल हर्ब्स नेम्ड चालन, चालन वनस्पतियां मेकिंग अनकॉन्शियस, जो मनुष्य को अचेत कर दे, ऐसी वनस्पतियों के बारे में बताया है। उत्कीलन, जो कॉन्शियसनेस ले आए, फिर से उसको कॉन्शियस ले आए, ऐसी वनस्पतियां। एंड उन्मूल वज्र रोहा मीन्स क्विक हीलिंग ऑफ वुंड्स, घाव को तुरंत भरने की वनस्पतियां। इस प्रकार की वनस्पतियों का उन्होंने इस 21वें सर्ग में वर्णन किया है। 33वें सर्ग में उन्होंने बताया है कि जो धनुष था कृष्ण जी का, वो वानाशन नाम के ट्री से बना हुआ था। मैंने कई जगह देखने की कोशिश की कि वानाशन किस पौधे का नाम है, लेकिन मुझे मिला नहीं उसका बॉटनिकल नेम। तो ये वानाशन है, और आज जरूरत है हमको कि फिर से हम खोज करें कि ये वानाशन नाम की वनस्पति कौन सी थी। फिर इलायची के जंगलों का द्वारकापुरी के आसपास वर्णन किया है, इसके साथ साथ बीटल, लौंग, सुपारी इत्यादि का। और उन्होंने भगवान नेमिनाथ के बारे में भी इस पुराण में लिखा है कि वो एक गार्डन में रेस्ट कर रहे थे, और जो उन पर पंखा झलाया जा रहा था वो साल और तमाल के ट्रीज की पत्तियों का बना हुआ था। और जो द्वीपायन मुनि की हम कथा सुनते हैं, तो इसके 21st सर्ग में बताया गया है कि दीपायन मुनि कदम्ब वन में, अंतिम समय में वो कदम्ब वन में थे। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। 5वें सर्ग में उन्होंने बताया है कि जो मेरू पर्वत की लोअर चूलिका है, निचली चूलिका है, इट कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग फॉरेस्ट: भद्रशाल वन, मानसोत्तर वन, देव रमन वन, नाग रमन वन, भूत रमन वन, नंदन वन, उपनंदन वन, सोमनाथ वन, उप सोमनाथ वन, पांडुक वन,
वन, इस प्रकार ये 11 प्रकार के फॉरेस्ट को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट प्लीज। तो इन जंगलों में कितनी प्रकार की वनस्पतियां होती होंगी वो आप समझ सकते हैं। फिर आदि पुराण की जब बात करते हैं, आचार्य जिनसेन जी ने इस आदि पुराण में कहा कि उन्होंने 10 टाइप के कल्प वृक्षों को बताया है, लेकिन हमारे जैन धर्म में कल्प वृक्षों को वनस्पति कायक जीव नहीं बताया, कल्प वृक्षों को हमारे यहाँ पृथ्वी कायक जीव ही बताया है। लेकिन चूंकि कल्प वृक्ष कहा तो इसलिए मैंने एक बार उनका जिक्र करना जरूरी समझा कि कई प्रकार के 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते थे और मनुष्य उस जमाने में अपनी जो भी पूर्ति हुआ करती थी, जो आवश्यकताएं हुआ करती थी, वो इन वृक्षों से ले लिया करते थे। फिर आदि पुराण में यही बताया है कि जो अंतिम कुलकर थे, जो नाभि राय जी थे, उनके जमाने में जो वनस्पतियां प्रमुख रूप से होती थी उनमें चावल, जौ, वीट, कांगनी, अलसी, निवार, मसूर, मूंग, उड़द, सरसों, अरहर, इस प्रकार की वनस्पतियां होती थी। इसके बाद में जब हम पाते हैं कि भगवान आदिनाथ ने 6 प्रकार की कलाएं मनुष्यों को सिखाई कि इन कलाओं से आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं, तब उन्होंने कृषि भी बताई, कृषि कला भी बताई और उनमें कई प्रकार की जो धन धान्य है उनको उगाना बताया मनुष्यों को। देन कई प्रकार के जो वन है वो फ्लावर्स हैं, फूल हैं, उनका वर्णन आदि पुराण में किया है और यही भी बताया कस्बे हुआ करते थे, उनकी जो बाउंड्री हुआ करती थी वो बबूल और चीर नाम के पौधों से होती थी, उनसे बाउंड्री बनाते थे बबूल और चीर से। और यह भी बताया है कि भरत जी ने जब भगवान आदिनाथ की पूजा की तो आम, जामुन, कैथा, कटहल, बनाना, अनार इत्यादि इनसे पूजा की। और फॉरेस्ट लाइक मलायवती, तीर वन, सिंधु तत्वन, दक्षिण समुद्र तत्वन, they have been mentioned। तो कई प्रकार के वनों का इसमें वर्णन किया गया है आदि पुराण में। नेक्स्ट प्लीज। फिर आज हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग the botanist or the naturalist, they have been trying to classify plants into various categories on the basis of their morphology, on the basis of other characters, on the basis of physiology. Our acharyas, they had also classified plants mainly on the basis of habit, that is morphology of plants, and on that basis they had classified plants in vraksh, guch, gulm, lata, valli, parv, तृण, वलय, हरिया, ओशाही, जलरूहा, कुहास, इस प्रकार उन्होंने वनस्पतियों का वर्णन कर दिया है। आज हम जब वनस्पति में पढ़ते हैं कि एक बीजी और बहुबीजी, हमारे आचार्यों ने बहुत पहले ही बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ सीड्स। एगत्तिया मीन्स वन सीडेड प्लांट एंड बहुबीजा मीन्स मैनी सीडेड प्लांट्स। तो ये बहुत पहले। आज अफसोस इस बात का होता है कि हम जब भी प्लांट का क्लासिफिकेशन बताते हैं या हमको जो बताया गया वो बताया गया इन 200 साल के अंदर। हम स्टार्ट करते हैं लिनियस से, फिर दूसरे जो वेस्टर्न कंट्री के या यूरोपियन कंट्री के बॉटनिस्ट हुए उनका हम नाम लेके उनको क्रेडिट देते हैं, लेकिन हम अपने स्वयं के आचार्यों को भूल जाते हैं कि हमको उनका भी जिक्र करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। ये बहुत जरूरी है। नाउ कमिंग ओवर टू the plants, the botanical science which has been mentioned in Jain ancient scriptures. षट्खंडागम हम जानते हैं कि सबसे पहला ग्रंथ था जो आचार्य पुष्पदंत भूतबली जी ने जिसकी रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, सबसे पहले रचा हुआ ग्रंथ श्रुत परंपरा के बाद का। और षट्खंडागम पर धवला टीका लिखी गई। वॉल्यूम 1 से लेके 5 तक आचार्य वीरसेन जी ने धवला टीका लिखी, धवला टीका के नाम से। महाधवला टीका वॉल्यूम 6 के ऊपर लिखी गई आचार्य वीरसेन जी द्वारा। कषाय पाहुड़ और कषाय प्राभृत ग्रंथ आचार्य गुणधर जी ने लिखा। और जय धवला टीका जो कषाय पाहुड़ पर लिखी गई वो आचार्य वीरसेन जी और जिनसेन जी ने लिखी। इन टीकाओं में और इन ग्रंथों में हमको प्लांट्स के बारे में बड़ा अच्छा वर्णन मिलता है। इतना माइन्यूट डिस्क्रिप्शन शायद ही हमको कहीं मिलेगा जो हजारों वर्ष पूर्व हमारे आचार्यों ने हमको बताया। नेक्स्ट प्लीज। षट्खंडागम में एक सूत्र आता है, 41वां सूत्र आता है। वो 41वां सूत्र कहता है बनफड़ी कैया दुबिहा
पत्तेया शरीरा साधारण शरीरा, पत्तेया शरीरा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता, बादरा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता, सहुमा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता चेदी। बड़ी गहरी बात इसमें कही कि हम बड़े मोटे रूप में पौधों को क्लासिफाई करते हैं, लेकिन हमारे आचार्यों ने इन वनस्पतियों को दो प्रकार से क्लासिफाई किया। एक प्रत्येक वनस्पति, दूसरी साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति वो होती है जिसमें एक शरीर के आश्रित एक ही जीव होता है, एक आत्मा होती है, और साधारण शरीर अनंत काय होती हैं, अनंत आत्माएं उसमें निवास करते हैं। फिर प्रत्येक वनस्पति को अगेन दे क्लासिफाइड इनटू टू, पर्याप्तक एंड अपर्याप्तक। साधारण शरीर को फिर उन्होंने दो भागों में डिवाइड किया, बादर एंड सूक्ष्म, और सूक्ष्म वनस्पतियों को फिर उन्होंने पर्याप्तक और अपर्याप्तक में विभाजित किया। ऐसा क्लासिफिकेशन हमको वनस्पतियों का कहीं भी नहीं मिलेगा। हम जानते हैं पर्याप्तियां 6 होती हैं, और ये पर्याप्तियों की ही कैपेसिटी होती है कि जिससे हम अपनी जो शक्ति होती है, जो हमारे शरीर का संचालन होता है, मन का हो चाहे इंद्रियों का हो, वो सब इससे चलता है। नेक्स्ट प्लीज। फिर सप्रतिष्ठित एंड अप्रतिष्ठित। आज के समय में जब हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि इस पौधे में, इसके सीड में, इसकी रूट में, इसकी नोड में, इसकी ग्लैंड में बहुत सारे सूक्ष्म जीव भरे हुए हैं। लेकिन हजारों साल पहले हमारे आचार्यों ने और हमारे भगवान की दिव्य देशना में यह बात आई कि सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दो प्रकार की वनस्पतियां होती हैं। और उसी की 185वीं गाथा में कहा है, उदय दु बन फड़ कम्मसा, या जीवा बन फड़ी होदी, पत्तेयम सामानम पदतिथि दरांति पत्तेयम। व्हाट डज इट मीन? वनस्पति का एक जीव टेक बर्थ ड्यू टू वनस्पति नाम कर्म। ये हम सब जानते हैं कि वनस्पति नाम कर्म से ये वनस्पति जाति में उत्पन्न होते हैं। ये प्रत्येक हैं और साधारण हैं, और फिर प्रत्येक वनस्पतियां ये प्रतिष्ठित होती हैं और अप्रतिष्ठित होती हैं। इनमें फिर दूसरे जीव, अनंत जीव रहते हैं और नहीं भी रहते हैं। जब रहते हैं तो सप्रतिष्ठित हैं और नहीं रहते हैं तो अप्रतिष्ठित हैं। नेक्स्ट प्लीज। तलोयपणक्ति एक महान ग्रंथ है। आचार्य यति वृषभाचार्य जी ने 6वीं शताब्दी के लगभग इसको लिखा, और ये कर्णान योग का बड़ा अच्छा ग्रंथ है, और इसमें 8000 गाथाएं लिखी गई थी। और इसके जो 5वां महाधिकार है, उस महाधिकार में सामान्य वनस्पतियों की संख्या की काउंट, संख्या के बारे में लिखा गया है। आप सोचिए, इतनी वनस्पतियां हमारे चारों तरफ होती हैं, क्या उनकी संख्या को ज्ञात किया जा सकता है? उन्होंने इसकी संख्या के बारे में सूत्र दिया। इस सूत्र का मतलब यह है, अगेन आफ्टर डिडक्टिंग सिद्ध राशि, त्रस राशि, पृथ्वी कायक, जल कायक, तेजस कायक and vayu kayak from the total जीव राशि, the outcome figure indicates the number of वनस्पति कायक। मैं चूंकि मैथमेटिशियन नहीं हूं, मैं इस चीज को बहुत ज्यादा गहराई में नहीं समझ पाता, लेकिन मुझे इस सूत्र से ये पता चला कि इतना ज्ञान हमारे आचार्यों को था कि उन्होंने इसके नंबर के बारे में भी बताया। नेक्स्ट प्लीज। फिर साधारण वनस्पतियों के काउंट के बारे में भी उन्होंने बता दिया था कि साधारण वनस्पतियों का भी हम किस प्रकार से काउंट कर सकते हैं। तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी आचार्य जी ने लिखा, और उन्होंने लिखा, एक सूत्र दिया 22वें नंबर का, वनस्पतियंता नामे कम। मीन्स ये अर्थ, पृथ्वी, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, जो वनस्पतियां, दे हैव ओनली वन इंद्रिय। देन अगेन ही सेज सम्मूर्छन गर्भोपादा जन। 3 प्रकार से जन्म होता है, सम्मूर्छन से, उत्पाद से और गर्भ से। तो वनस्पतियों का जन्म केवल सम्मूर्छन ही होता है। आप सोचिए कि तरह तरह से, अलग अलग तरह से, अलग अलग जगह से पुद्गल परमाणु आकर मिलना और फिर सम्मूर्छन जन्म लेना, इस प्रकार की व्याख्या करना अपने आप में एक अद्भुत बात है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, और इसके बारे में अभी विज्ञान कुछ नहीं कर पाया है और ना कुछ कह पाया है सम्मूर्छन के बारे में। लेकिन यह बात सत्य है जो हमारे आचार्यों ने कही कि इनका सम्मूर्छन जन्म तो
पंचेंद्रिय जीवों का भी हो जाता है, कईयों का होता है, लेकिन यह वनस्पति काय के बारे में मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट प्लीज। सप्ताह सूत्र में ही उन्होंने फिर कहा कि योनियां होती हैं, और वो योनियों के बारे में उन्होंने ये सूत्र दिया, सचित शीत समृता सेत्रा मिश्रास्तई कस्तद्यो नया। 3 योनि होती हैं, सचित, शीत और समृत। फिर इनके अपोजिट अचित, अशीत, असमृत, ये मान लीजिए। और फिर सचित्ताचित, शीतोष्ण और समृत, विव्रत। तो इस प्रकार के ये जो 9 प्रकार की योनि होती हैं, इन 9 प्रकार की योनियों से समूर्छन जीवों का जन्म होता है। और फिर उन्होंने यही भी कहा, इनके जेंडर के बारे में भी बताया, नारक समूर्छनो नपुंसकानी, जो नारकीय हैं और समूर्छन है, दे हैव न्यूट्रल जेंडर। वनस्पतियां समूर्छन है, वो न्यूट्रल जेंडर में ही आती हैं। नेक्स्ट प्लीज। रत्नखंड श्रावकाचार, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, आचार्य समंत भद्रजी द्वारा लिखा गया। और उन्होंने 8वें अधिकार में, 4थे अधिकार में उन्होंने एडिबल्स और नॉन एडिबल्स के बारे में कहा कि क्या कौन कौन सी चीजें अभक्ष हैं। और फिर उन्होंने अभक्षों के बारे में जो सूत्र दिया, अल्प फला बहु बीज घाताम घातान मूला कामार्द्राणी श्रृंगा वेराणी नवनीत निम्ब कुसुमम कैत का मित्य बभा नियता। It means intake of many items including plants, they give less benefit. हमको लाभ कम होता है, लेकिन हम हिंसा बहुत करते हैं इन सबको खाने से। और उसमें अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स भी हैं, बहुत सारे फ्रूट्स भी हैं, और उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी इसमें दिए हैं कि किस किस को हमको नहीं खाना चाहिए। इनको खाने से त्रस्त जीवों की और दूसरे जीवों की हिंसा होती है। नेक्स्ट प्लीज। मूलाचार आचार्य भट्टेकर जी द्वारा लिखा गया। अब देखिए, हम आज के जो बॉटनिस्ट हैं वो बताते हैं कि प्लांट्स का जन्म कितने तरीके से हो सकता है, लेकिन हमारे आचार्यों ने हजारों 2000 साल लगभग पहले ये बता दिया कि द प्लांट्स ऑकर फ्रॉम मूल आर मूल बीजा। यू सी द टर्मिनोलॉजी, द प्लांट्स ऑकर फ्रॉम मूल मूल बीजा, ऑकर फ्रॉम अपेक्स अग्र बीजा। एग्जाम्पल कोरांतक, मल्लिका, कुब्जक एक्सेट्रा। द प्लांट्स विच ऑकर फ्रॉम नोट्स, गांठों से जो बनते हैं, दे आर नोन एज पर्व बीजा, जैसे कि गन्ना इत्यादि है। जो राइजोम से या जो अंडरग्राउंड है उनसे, उनको हम कंद बीजा कहते हैं, करली, पिंडालू एक्सेट्रा। स्कंद से जो बनते हैं स्कंद बीजा, सल्लकी, पलीवर। और सीड से जो बनते हैं, बीजों से जो पैदा होते हैं, जैसे कि अनाज है हमारे इत्यादि, व्हीट वगैरह, ये सब ये सीड बीजा है। नेक्स्ट प्लीज। तो उस समय उन्होंने ये वर्गीकरण कर दिया और उनकी ये टर्मिनोलॉजी उन्होंने दी। फिर हम गौमटसार जीव कांड ग्रंथ को लेते हैं, आचार्य नेमिचंद जी, सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने लिखा, और उन्होंने 14 काइंड्स ऑफ जीव समाज के बारे में आप जानते हैं कि जो हम जितने भी तरह के जो अनंत जीव हैं और उनके जो भेद प्रभेद होते हैं, जब हम उनको संग्रहित करते हैं तो वो जीव समाज कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है? इस सूत्र का मतलब, इट मीन्स एक इंद्रियाज आर ऑफ 2 टाइप्स, बादर एंड सूक्ष्म, विकलेंद्रिया of 2, 3 and 4 इंद्रिय टाइप, पंचेंद्रिय of संगी and असंगी टाइप। Thus above 7 types again happen to be पर्याप्तक and अपर्याप्तक टाइप। Thus total number comes to थोड़ी देर रहो। Pardon? Okay, next slide please। गौमटसार में फिर हम आगे देखते हैं कि जो आचार्य इसमें कहते हैं बर्थ के बारे में, मैं इस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा कि किस प्रकार का बर्थ जो होता है वो अंडज, जरायुज और पोतज के द्वारा होता है। तो इस प्रकार इसमें बताया गया है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। इसमें भी सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित के पहचान के लक्षण दिए हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। इन गौमटसार जीव कांड, मैंने आपको बताया कि सप्रतिष्ठित वनस्पतियां और अप्रतिष्ठित वनस्पतियां, उसके आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं इस गाथा में। इसका मतलब क्या है? मैं गाथा नहीं पढ़ रहा, समय कम है। इसका मतलब ये है, द प्लांट्स डू नॉट एग्जिबिट वेन्स, नोड्स, जॉइंट्स एक्सेट्रा एंड डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स, shows no fiber connection after splitting
and grow again even after destroying them are called सप्रतिष्ठित। ये सप्रतिष्ठित होते हैं, इनमें नसें नहीं दिखती हैं, नोड्स नहीं होते हैं, जॉइंट्स नहीं दिखते हैं, कोई फाइबर कनेक्शन नहीं होता है, जैसे जटाएं वगैरह होती हैं हम इसी में, ये सब कुछ नहीं होता है। तो ये सप्रतिष्ठित की पहचान है। while the plants of opposite character and symptoms are अप्रतिष्ठित। फिर दूसरी उन्होंने जो गाथा 8/189 जो बताई, उसमें कहा the plant parts like rhizome, roots, small twigs etc contain thick bark are called अनंत जीवा सप्रतिष्ठित। थिक बार्क है इनके राइजोम की, रूट्स की और ट्विग्स की, अनंत कायिक सप्रतिष्ठित, while which have thin bark are अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। कल्याण कारक एक बहुत महान ग्रंथ है, आचार्य उग्रदत्ताचार्य जी ने इस ग्रंथ को लिखा, और इस ग्रंथ में तो वास्तव में हम कह सकते हैं कि अजूबा ही है। इसमें मेडिसिनल, एग्रीकल्चरल, डेकोरेशन, एस्थेटिक, और मैं थोड़ा बाद में आऊंगा इस ग्रंथ के बारे में। श्री भूवलय, आजकल श्री भूवलय के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। एक बड़ा दुर्लभ ग्रंथ है और बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है इस ग्रंथ को प्रकाश में आए हुए, और इस पर काफी कार्य हो रहा है। कुमदेंदु आचार्य जी ने इसको कहते हैं 8वीं-9वीं शताब्दी के लगभग लिखा। इट्स एन यूनिक एंशिएंट स्क्रिप्चर रिटन इन न्यूमेरिकल फॉर्म। कन्नड़ न्यूमरल्स जो हैं उनमें इस ग्रंथ को लिखा गया। आप सोच सकते हैं कि उस समय 1000 साल से ज्यादा पहले कोई न्यूमरल्स में किसी ग्रंथ को लिख के। इट कंप्राइजेज वर्ड्स 718 languages, 363 religions are there, 64 types of art and scientific subjects are there, and only numerals 0 to 9 they are used. मैंने भी इस ग्रंथ के कुछ पार्ट जो पब्लिश हुए, कुछ कमेंट्री वगैरह कुछ लिखी छोटी छोटी बुकलेट के फॉर्म में, वो मैंने भी देखा और मैं भी आश्चर्यजनक रह गया। तो इसको डिजिटाइज कर रहे हैं, इसको कोडिंग डिकोडिंग का काम चल रहा है, और इंदौर में इसका काफी काम चल रहा है। डॉक्टर अनुपम जी के पास में इसकी काफी जानकारी है, डॉक्टर अनुपम जैन जी के पास में श्री भूवलय जी के, वो काफी प्रयास कर रहे हैं। द फर्स्ट एवर डिजिटल मेथड that is the coded language has been used in this scripture, and various usage of plants they have been mentioned. For example, processed with mantras, rus of panas plant is used for akash gaman. पनस पौधे के रस को अगर सिद्ध कर लिया जाए मंत्र से तो आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो सकती है, ऐसा इसमें बताया है। फ्लावर्स ऑफ गिरीकरण का प्लांट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग मरकरी which can be used for आकाश and पाताल गमन। मरकरी से, पारे से उसको सिद्ध किया जाए अगर गिरीकरण का पौधे को, तो आकाश और पाताल गमन की विद्या सिद्ध हो सकती है, ऐसा श्री भूवलय में बताया है। रसमणि prepared after processing of अशोक flowers can be used in walking over surface of water। हमारे यहाँ बताते हैं कि जिनको ये विद्या सिद्ध हो जाती है, शक्ति हो जाती है, ऐसे मुनिजन पानी पर भी चल सकते हैं, तो ये भी उसमें बताया गया है। तो इस प्रकार से कई सारे उनमें उदाहरण दिए गए हैं। फिर द्रव्य संग्रह एक बड़ा अच्छा ग्रंथ है, आचार्य नेमिचंद जी ने इसको लिखा, और उन्होंने भी फिर प्रत्येक को साधारण वनस्पति में पौधों को और सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित में उन्होंने क्लासिफाई किया प्लांट्स को। तो मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि अनेक ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन आता है, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित का, प्रत्येक और साधारण का। फिर एक ग्रंथ है जोड़ी पहाड़, ये जोड़ी पहाड़ अनुपलब्ध है, और पंडित हरि सेन ही कंप्राइजेज डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन आयुर्वेद। इसमें आयुर्वेद की बहुत बात है ऐसा कहा गया है, लेकिन ये अनुपलब्ध है। पौमचरियम श्री बिमल सूरी जी महाराज के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया, और उसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स का वर्णन है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। फिर अन्य ग्रंथ बहुत महान आचार्यों द्वारा लिखे गए, और इन ग्रंथों के नाम है आचारांग, स्थानांग, सूत्रकृतांग, भागवई और पन्नावना। और इन महान ग्रंथों में बहुत तरह के पौधे, उनको क्लासिफाई किया गया एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अभी मैंने बताया मॉर्फोलॉजी ऊपर की जो देखने में आता है, लेकिन एनाटॉमी आंतरिक संरचना क्या है उसके बेसिस पर, और फिजियोलॉजिकल फंक्शन। देन प्रज्ञापना सूत्र, उत्तराध्यायन सूत्र, इनमें भी प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया। सूत्रकृतांग सूत्र भाई आचार्य सुधर्म
इन्होंने 12 कैटेगरी में प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड देयर नॉरिशमेंट। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। देन दूसरे ग्रंथ हैं विशेषावश्य भाष्यम, जीवाजी भापिगम सूत्र, सुदर्शन समुच्चय। इन सब ग्रंथों में बहुत सारे प्लांट्स को, जबकि विशेषावश्यक भाष्यम में तो ये बताया गया है कि द प्लांट्स दे फील प्लेजर ड्यू टू म्यूजिक और मेलोडियस, वो भी प्लेजर फील करते हैं, ये इसमें बताया गया है। एंड दे हैव बर्थ, फियर, सेक्सुअल डिजायर, पोजेशन, एंगर, प्राइड, जितनी भी ये सब होती हैं वो सब संज्ञाएं इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। भगवती सूत्र में 8 कैटेगरी में प्लांट्स को विभाजित किया गया है। शालीधन्य जाति, सीरियल्स, अलसी जाति, ऑयल यील्डिंग, इच्छुक जाति, प्लांट्स विद नोट्स एक्सेट्रा, अभ्र जाति, स्पेशल ग्रासेज, कलाय जाति, पी एक्सेट्रा, बांस जाति, बैम्बूज, डर्म जाति, ग्रासेज एक्सेट्रा, तुलसी जाति। इस प्रकार से भगवती सूत्र में पौधों को क्लासिफाई किया गया। नेक्स्ट प्लीज, प्लीज बी क्विक। फिर बात आती है, हमारे आचार्यों ने ये डिवीजन तो किया, ये सब कुछ किया, लेकिन क्योंकि उनको गृहस्थों के, श्रावकों के स्वास्थ्य की भी बहुत चिंता थी और अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्होंने बड़े अच्छे सूत्र दिए और बहुत अच्छे ग्रंथ दिए। नेक्स्ट प्लीज। मैं कुछ ग्रंथों का वर्णन यहाँ पर करना चाहूंगा। सिद्धांत रसायन कल्प, ये उग्रदत्ताचार्य ने ग्रंथ लिखा है सिद्धांत रसायन, और ऐसा कहते हैं, ऐसा लिखा है कि ये ग्रंथ वास्तव में समंत भद्राचार्य ने लिखा हुआ था और ये ग्रंथ अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत सारी किताबों में और बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं उनमें इनका उल्लेख मिलता है। और जो आयुर्वेद में जो अष्टांग का प्रिंसिपल है, अष्टांग दर्शन है, उसके बारे में भी सिद्धांत रसायन कल्प में बताया गया है। नेक्स्ट प्लीज। फिर आचार्य पूज्यपाद ने शलाक्य लिखा, पत्रा स्वामी ने शाल्य तंत्र लिखा, आचार्य सिंह सेन ने पॉइजन एंड ग्रह शांति पर ग्रंथ लिखे, मेघनाद ने पीडियाट्रिक्स पर बाल रोग पर लिखा, सिंहनाद ने शरीर बलवर्धक पर ग्रंथ लिखा। नेक्स्ट प्लीज। अष्टांग समग्र ग्रंथ, ये समंत भद्राचार्य जी ने लिखा और इन्होंने बहुत सारे आयुर्वेद के सिद्धांतों को और बहुत सारे उपचारों को इस ग्रंथ में उन्होंने बताया है। निदान मुक्तावली ग्रंथ, इसमें 2 प्रकार के वर्णन मिलते हैं, काला रिष्ट और स्वास्थारिष्ट, और इसके ऑथर का पता नहीं है कि कौन इसके लेखक थे, लेकिन आखिरी में जो सूत्र है उसमें ये लिखा गया है पूज्यपाद विरचितम, शायद पूज्यपाद आचार्य जी ने लिखा गया हो। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। मदन कामरत्न, ऐसा नहीं है कि दूसरे डिसिप्लिन आयुर्वेद के उस पर लिया, लेकिन उन्होंने सेक्सोलॉजी पर, काम सूत्र पर भी आचार्यों ने ग्रंथ लिखा और मदन काम रत्न नाम का ये ग्रंथ लिखा गया और इसमें बहुत सारे जो हैं वर्णन उन्होंने किए हैं। नेक्स्ट प्लीज। योग रत्न चिंतामणि, ये इसको वैद्यक सार संग्रह भी कहते हैं और आचार्य हर्ष कीर्ति सूरी जी इसके ऑथर हैं, जो कि आचार्य चंद्र कीर्ति सूरी जी के शिष्य थे और ये नागपुरी तपागच्छ को बिलोंग करते थे। इसमें 29 चैप्टर 29 चैप्टर्स बताए गए हैं, जो कि आगे की स्लाइड में है। ये 29 चैप्टर्स हैं, पादाधिकार एक्सेट्रा, ये सब चैप्टर्स हैं, पादाधिकार, चुमाधिकार, घृताधिकार, मिश्राधिकार। तो इस प्रकार 29 चैप्टर्स में अलग अलग प्रकार की दवाइयां बनाने के औषधीय पौधों से वर्णन इसमें किया गया है और अलग अलग बीमारियों का वर्णन भी किया गया है। नेक्स्ट प्लीज। नाड़ी परीक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे प्राचीन काल में, वो बल्कि अभी 100 वर्ष तक और 50 वर्ष तक हमारे यहाँ जो वैद्य हुआ करते थे वो नाड़ी परीक्षा में महारत हासिल थी। आचार्य पूज्यपाद ने नाड़ी परीक्षा लिखी और इसको जिन रत्न कोश में इसके बारे में बताया गया है कि ये नाड़ी परीक्षा ग्रंथ लिखा था आचार्य पूज्यपाद जी ने। फिर मेरुदंड तंत्र भी लिखा, ये इसको गुम्मट देव मुनि ने लिखा इसको, और इसमें स्पाइनल कॉर्ड की जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में और पौधों से कैसे उपचार किया जा सकता है वो लिखा। देन योग रत्नमाला वृत्ति, नागार्जुन ने जो वैदिक ग्रंथ लिखे उस पर आचार्य गुण सूरी जी ने वृत्ति मतलब कमेंट्री लिखी, योग रत्नमाला वृत्ति,
और उसमें बहुत सारे उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं प्लांट्स के। और पीटरसन साहब जो एक ब्रिटिश ऑथर हो चुके हैं, उन्होंने अपने रिपोर्ट में भी इस ग्रंथ का वर्णन किया है। नेक्स्ट प्लीज। फिर अष्टांग हृदय वृत्ति। अष्टांग हृदय वृत्ति ये बड़ा मशहूर ग्रंथ है, और जैनाचार्य आशाधर जी ने उद्योत वृत्ति मतलब इस पर कमेंट्री की है, अष्टांग हृदय वृत्ति पर ये। और पीटरसन की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये लगभग 1240 में लिखा गया। देन योग षट वृत्ति, देन वैद्य वल्लभ ग्रंथ, हस्ती रुचि आचार्य जी ने इस ग्रंथ को लिखा, और इसमें उन्होंने 8 सेक्शंस, ही डिवाइडेड इनटू 8 सेक्शंस, और इसको वर्स में लिखा गया, कवित्व में लिखा गया, कविता के रूप में लिखा गया। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, फिर रस प्रयोग, रस चिंतामणि, माघराज पद्धति, आयुर्वेद, महोदधि, इस प्रकार के ये ग्रंथ लिखे। आप देखिए इन ग्रंथों में हजारों श्लोक हैं, किसी किसी ग्रंथ में तो 10-10 हजार श्लोक तक दिए हैं। इतना विशाल, इतना विशद ज्ञान हमारे आचार्यों का था। चिकित्सा सोत्सव, आचार्य हंसराज जी ने इस ग्रंथ को लिखा, और इसमें 1700 श्लोक उन्होंने लिखे हैं। ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका रेफरेंस मिलता है। निघंटु कोश, ये निघंटु कोश में बहुत सारे वर्णन मिलते हैं। देन नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, मैं जल्दी में जिससे कि ज्यादा बता सकूं, जगत सुंदरी प्रयोग माला, ये योनि प्राभृत एंड जगत सुंदरी प्रयोग माला, ये भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में उपलब्ध है। और ये प्राकृत लैंग्वेज में वर्सेस में, प्राकृत लैंग्वेज की वर्सेस में इसको लिखा गया, और इसमें बीच बीच में हिंदी और संस्कृत का भी प्रयोग किया गया है। और इसमें 43 अधिकार हैं और 1500 गाथाएं इस ग्रंथ में वर्णित हैं। Stated that period of यश कीर्ति was there. इसमें 18 चैप्टर्स हैं, और इन 18 चैप्टर्स के नाम ये दिए गए हैं, और इसमें टर्मिनोलॉजी बड़ी अच्छी दी गई है। और इन टर्मिनोलॉजी में अलग अलग अधिकार भी हैं, जैसे ज्वराधिकार, प्रमेय, मूत्र किच्छा, ऐरावन यंत्र, यंत्रों के बारे में। मतलब उस समय भी हमारे आचार्यों को यंत्रों का ज्ञान था, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का ज्ञान था, और उन्होंने इस प्रकार के यंत्रों का वर्णन किया है। ये इस लिस्ट में दिया गया है। नेक्स्ट प्लीज। ज्वर पराजय, किस प्रकार से बुखार की चिकित्सा की जाए, इसको आचार्य जय रत्न सूरी जी ने लिखा। और उन्होंने कई सारे जो अन्य आचार्यों के जो वैदिक आचार्य हैं, जैसे कि अत्रेय मुनि, चरक, सुश्रुत, भागवत, अरंड, अंगद, इन सब के ग्रंथों को पढ़कर फिर उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा, ज्वर पराजय, और इसमें 449 श्लोक उन्होंने दिए हैं। नेक्स्ट प्लीज। सार संग्रह, ये ग्रंथ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अकलंक संहिता के नाम से इसको जाना जाता है। और इसमें मरकरी वगैरह इस प्रकार के जो रस हैं, उनकी चिकित्सा है, ये बताई गई है। नेक्स्ट प्लीज। निबंध, ये 1700 एडी में लिखा गया, वो वर्सेस के फॉर्म में है, और इसमें जो कई सारे वर्सेज हैं उनमें निबंध के बारे में बताया गया, किस प्रकार से हम कई प्रकार की चिकित्साएं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नाड़ी विचार, ये पाटन का जो ज्ञान भंडार है, लाइब्रेरी है, उसमें ये उपलब्ध है, और 78 वर्सेज में इस नाड़ी विचार को लिखा गया। और नाड़ी चक्र नेक्स्ट जो है, नाड़ी संचार ज्ञान जो है, और इसके ऑथर का नाम उपलब्ध नहीं है, लेकिन द नेम ऑफ द लेटर वाज मेंशन्ड इन बृहद टिप्पणिका, और कम से कम 500 साल पुराना ये ग्रंथ है। नाड़ी निर्णय ग्रंथ, ये 1812 में रिपब्लिश हुआ पंडित मानशेखर मुनि जी द्वारा, और इस ग्रंथ को नाम दिया गया नाड़ी निर्णय, और 41 वर्सेज इस ग्रंथ में हैं। और इसमें मूत्र परीक्षा, तेल बिंदु परीक्षा, दोष परीक्षा, नेत्र परीक्षा, मुख परीक्षा, जीव्या परीक्षा इत्यादि अनेक प्रकार की जो रोगों की परीक्षा है इन अंगों की, और उनके उपचार के जो उपाय हैं पौधों से, वो सब दिए गए हैं। नेक्स्ट प्लीज। पुष्पायुर्वेद, हम सोच नहीं सकते कि पुष्पों के द्वारा भी हमारे आचार्यों को चिकित्सा करने का ज्ञान था। ये आचार्य समंत भद्र ने पुष्पायुर्वेद लिखा,
It includes description of over 18,000 different types of flowers without stem and stigma. मैं वनस्पति विज्ञान का विद्यार्थी हूं और मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है जब मैं ये पढ़ता हूं कि विदाउट स्टामेन एंड स्टिग्मा ऐसे पौधे, और वो भी उनकी संख्या 18,000 हो, इस प्रकार के पौधों से उपचार करने की विधि ऐसे उन्होंने डेवलप की और उसको पुष्पायुर्वेद नाम दिया गया. नॉन वायलेंस बीइंग वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, therefore Jain saints and sages have always tried to emphasize the use of herbal medicines. ये मैं आपको बता चुका हूं. ये ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है पुष्पायुर्वेद. नेक्स्ट प्लीज. वैद्यामृत ग्रंथ, ये भी आचार्य पूज्यपाद द्वारा लिखा गया और इसको वर्णन गोमट देव आचार्य ने अपने ग्रंथ मेरु तंत्र में इसका वर्णन किया है. फिर दूसरे बहुत सारे ऑथर हुए, बहुत सारे आचार्य नहीं हुए तो बहुत सारे जो वैद्य हुए, उन्होंने भी कई सारे ग्रंथों को लिखा. और यहाँ पर जो लिस्ट दी है, कीर्ति वर्मा गौ वैद्य, गाय की चिकित्सा, काउ ट्रीटमेंट, काउ थेरेपी, मंगल राजा, खगेंद्र मणि दर्पण, अभिनव चंद्रा, हयास शास्त्र, जो हॉर्सेज की, घोड़ों की चिकित्सा कैसे की जाती है, हयास शास्त्र, उसके बारे में इन्होंने लिखा है. देन देवेंद्र मुनि, उन्होंने बाल ग्रह चिकित्सा, इसके बारे में लिखा है. इसको थोड़ा हटाइए प्लीज. देन अमृत नंदी वैद्यक निघंटु, जगदेव महामंत्रवादी, श्रीधर देव वैद्यामृत, सालवा, इन्होंने रस रत्नाकर वैद्य संगत्या नाम के ये ग्रंथ लिखे. तो ये दूसरे ऑथर्स भी हैं. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट. ये डॉक्टर साहब अभी कितनी और स्लाइड्स हैं? कल्याण बस लास्ट चल रहा है मेरा. तो उग्रदत्ताचार्य ने लिखा है, एंड दिस स्क्रिप्चर कंप्राइजेस सेवरल रेफरेंसेज ऑफ आयुर्वेदा, और ऋग्वेद के भी बहुत सारे उदाहरण उन्होंने अपने इस ग्रंथ में दिए हैं, अथर्ववेद के भी दिए हैं. और ऐसा कहा जाता है कि वाघभट्ट के समय आचार्य उग्रदत्ताचार्य जी ने ये ग्रंथ लिखा और इसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के पौधों से चिकित्सा की जाती है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, इसको जो डिवाइड किया है उन्होंने चिकित्सा को, काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, शाला के चिकित्सा, दंश चिकित्सा, दंश जो पॉइजन वाली होती है, इस प्रकार से जार चिकित्सा. तो कई प्रकार की चिकित्साओं का ये वर्णन उन्होंने इसमें किया है. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट. और दूसरे जो आचार्य हुए, इनके नाम पहले भी आ चुके हैं और कुछ और नाम इसमें हैं जिन्होंने दे कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू आयुर्वेदा. नेक्स्ट प्लीज. अब हमारे जो 100-200 साल अभी गुजरे हैं, इन 100-200 साल में भी हमारे विद्वानों ने काम किया, आचार्यों ने काम किया. और यहाँ मैं बताना चाहूंगा, जो पंडित टोडरमल जी जयपुर वालों ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो लिखा, उसमें उन्होंने वनस्पति कायिक जीवों के बारे में बताया कि दे हैव फीलिंग ऑफ ग्रीफ. आज हम बात करते हैं कि पौधों में या पृथ्वी कायिक जीवों में या इन्होंने ये सब फीलिंग नहीं होती है, लेकिन पंडित उन्होंने भी आचार्यों के ग्रंथ का ही अनुसरण किया है, तब उन्होंने लिखा है फीलिंग ऑफ ग्रीफ बाई वनस्पति कायिक जीव. क्रियाकोश कवि किशन सिंह जी ने विक्रम संवत 1784 में लिखा और उन्होंने उसमें 22 प्रकार के अभक्ष्यों का वर्णन इसमें किया है. नेक्स्ट प्लीज. फिर जैन तत्व विद्या आचार्य तुलसी जी ने लिखी, इसमें भी पौधों का वर्णन है. जीव अजीब आचार्य महाप्रज्ञ जी ने 1995 में, और उन्होंने प्रत्येक और साधारण वनस्पति के बारे में इसमें वर्णन किया. जैन आगम वनस्पति कोश जो लाडनू से बड़ा अच्छा ग्रंथ प्रकाशित हुआ और कम से कम वनस्पति शास्त्रियों के लिए तो बड़ा ही अच्छा रेफरेंस ग्रंथ है. एंड दिस इज एडिटेड बाय मुनि श्री चंद्र कमल जी. इसमें तो वनस्पतियों का भंडार बड़ा पड़ा है. ओवायम मुनि श्री नथमल जी महाराज साहब ने इसको लिखा. थानम इसको एडिट किया है मुनि श्री नथमल जी साहब महाराज ने. नेक्स्ट प्लीज. तो कंक्लूजन क्या है? व्हाट इज द कंक्लूजन? जैनाचार्यज have made great contribution in various fields of plant science. जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ उदाहरण मैंने दिए. The important contribution of Jain principle of non-violence has been considered by Jainacharyas increases the सत्व गुण of mind. वो सत्व गुण को बढ़ाना चाहते थे. हम जितनी ज्यादा अहिंसक शैली को अपनाएंगे हमारा सत्व गुण उतना ही बढ़ेगा.
द इफेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायोलेंस और पुष्पायुर्वेद एक बड़ा महान ग्रंथ इसमें हुआ। देयर इज ऑल्सो ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन बाय राइटिंग 27 आयुर्वेदिक ग्रंथ, आज 27 जो मैंने अभी आपको बताए, ऑन रस शास्त्र एंड नाड़ी विज्ञानम। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट उपलब्धि है हमारे जैन आयुर्वेद की। एंड देयर इज ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन चिकित्सा बाय राइटिंग ए ग्रंथ लाइक कल्याण कारक, in which many culps or preparations are mentioned which are without madhya, mas and madhu। कल्याण कारक में जितनी भी चिकित्सा है पौधों से या दूसरे प्रकार की, उसमें किसी भी प्रकार के 3 मकारों का कोई वर्णन नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। And what can we do? What should be our future objective? It will help in classification of plants as per Jain philosophy। हमको प्लांट से क्लासिफिकेशन के बारे में फिर से सोचना चाहिए, और आज के समय में और पहले के समय में क्या डिफरेंस है, इसको भी हमको कंपेयर करना चाहिए। Several plants which are not known at present but mentioned in Jain scriptures, they may be explored and they may be used। आज हमको फील्ड वर्क की बहुत जरूरत है कि ऐसे प्लांट्स के बारे में खोजा जाए। और हमारी बहुत से आदिवासी और जनजाति के लोग हैं जो पौधों को अपने पुराने नामों से पहचानते हैं, लेकिन हम आज नहीं पहचानते। हो सकता है कि इन ग्रंथों में जो नाम दिए हों वो नाम इनके आदिवासियों के पास मिल जाएं। Several plants can be used for medicinal purposes, conservation of important plant species which are threatened now। आज का पूरा जमाना, पूरा विश्व थ्रेटन्ड स्पीशीज से परेशान है कि इस प्रकार के पौधे जो थ्रेट कैटेगरी में आ गए हैं, जो नष्ट होने के कगार पर है, हम उनको कैसे कंजर्व करें। इनमें किस प्रकार के वनों का वर्णन किया है, वनस्पतियों का किया है, उनमें कौन सी हैं और कौन सी थ्रेटन्ड स्टेज में आ गई हैं। एडिबल एंड नॉन एडिबल प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड, आइडेंटिफाइड। Then very important is studies on microorganisms in the body of साधारण वनस्पति। It could be a good subject of research for microbiologists। आज हम बैक्टीरिया, वायरस, विरियन, इन सब की बात करते हैं, तो वो सब क्या हैं? वो कितने अनंत जीव हैं जो एक शरीर में मौजूद रहते हैं। एक बैक्टीरिया में अनंत वायरस होते हैं और एक साथ वो वायरस जन्म लेते हैं और मरते हैं। तो आज हमको वो माइक्रोबायोलॉजी को अध्ययन करने की जरूरत है, और वो हमको संदेश मिलता है, वो गाइडलाइंस हमको मिलती है हमारे साधारण प्रत्येक प्रकार की वनस्पतियों से। एंड इट्स ए लेसन फॉर अस टू कंजर्व अवर इकोसिस्टम। यू लिसन मी वेरी पेशेंटली। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। मेरे पास तो जो अल्प ज्ञान था, मैं यहाँ यह भी बता दूं, मैंने इन सभी ग्रंथों को नहीं देखा। बहुत सारे ग्रंथों का वर्णन तो दूसरे ग्रंथों में मिलता है, तो मैंने वहां से इनको लिया है, लेकिन जो कुछ मैं प्राप्त कर सका वो मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। और आप महानुभाव विद्वान हैं, और इसमें जो भी आपको कमी बेशी नजर आती है, जो भी आप इसमें नया ऐड करना चाहते हैं, आपके जो सुझाव होंगे, उन सभी सुझावों का मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतना विस्तृत व्याख्यान दिया। और एक मतलब कोई दूसरे लोग प्रश्न पूछे उससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। जितने भी आपने ग्रंथों के रेफरेंसेस दिए हैं, जहाँ जहाँ बॉटनी का वर्णन है, उन सब ग्रंथों की उपलब्धता ये SSRI जो इनका ऑफिस है, भंडारी साहब का, ये पोखरना साहब का, उसमें एक जगह अगर ये सारा कुछ ग्रंथ मिल जाए, या जो उपलब्ध नहीं है उनका जीरोक्स मिल जाए, तो जो भी बॉटनी में रिसर्च करने का इच्छुक होगा उसको सभी ग्रंथ एक साथ एक स्थान पर मिल जाएंगे, ऐसा मेरा सुझाव है। तो इसमें भंडारी साहब का क्या ओपिनियन है वो तो बताएंगे ही, लेकिन ये हमारी तरफ से मतलब ये सुझाव है कि जितने ग्रंथों की उपलब्धता हो सके, या उनकी जीरोक्स कॉपी मिल सके, या हार्ड कॉपी ओरिजिनल मिल सके तो और भी अच्छा है। तो एक स्थान पर होने से यह है कि जो भी शोध करता होगा उसको ग्रंथ ढूंढने में कठिनाई नहीं होगी। मैं अपना इस विचार के साथ ही अभी ये पोखरना साहब से निवेदन करता हूं कि आप ये कुछ कहना चाहते हैं, कहिएगा। अनम्यूट कर अच्छा सुझाव है डॉक्टर अनिल जी, आपका बहुत अच्छा सुझाव है। और मैं भी सोच रहा हूं कि मैं एक लिस्ट इस प्रकार की तैयार करूंगा, और जितनी अधिक से अधिक जानकारी मैं दे सकता हूं वो जानकारी मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ पोखरना साहब बोलिए। हाँ, सबसे पहले तो अपने अशोक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ इतने शानदार मतलब व्याख्यान के लिए। मतलब मेरी तो आंखें खुल गई और दिल धड़क रहा है कि कितना जबरदस्त खजाना भरा हुआ है, हम उसको कैसे आगे बढ़ाएं। मतलब 4-5